Varun, am I audible? Hello, ma'am. How are you? Fine. Is my voice audible? Yes, ma'am. It's audible. Are you facing some echo issues? No, ma'am. Okay, fine. Just give me 1 second. Is it okay now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now it's okay, ma'am. Okay. Okay, so in last lesson, we did about the force that we had studied, right? I told you to start recording. Is it started? Yeah, it is already recording. Okay, fine. Yeah. Okay, so Varun, we studied about force in the last lesson. Yes, ma'am. Okay, so can you please tell me about what do you think about the force that we did in the last lesson? What is force? Force is push or pull of an object. Okay, fine. So can you please give me an example of force? To kick a ball. Sorry, could you please repeat? Kick a ball. Kicking a ball. Okay, what else? Or opening a door. Opening a door. Okay. So what? Give me an example of a push. When Push. you push an object or you push something to that the place that you are applying force. And that we are pushing a big box. Okay. And what about a pull? Opening a door. Opening a door. Okay. Is kicking a ball an example of a push or a pull? Push. Okay. So you like playing football, right? Yes, ma'am. Okay. So you are in the team of goalkeepers, right? Yes, ma'am. Okay. So when you stop a ball from being goaled, so is it an example of a push or a pull? Push, ma'am. Okay. When is it an example, or how does it become an example of a push? That we are forcing towards the ball, ma'am. That's why. Okay, fine. Okay, so I think the concepts are really clear from the last lesson, Yes, right? ma'am. Okay, we were supposed to start reading from in our everyday life, from this paragraph, right? The very first paragraph. Yes, ma'am. In our everyday life, we observe that effort is required, right? Yes, Let's ma'am. start reading from here, and I'll give you all the explanation side by side, and we'll mark a few questions that can be done Yes, ma'am. for preparation of this unit. Okay? Okay, let's start. In our everyday life, we observe that some efforts is required to put a stationary object into motion or to stop a moving object. We or Wait. So now we have understood that to start the motion of an object or to stop a moving object, we need to apply some force, right? yes, ma'am. Okay, so what do you think about the example of in the case when you stopped a ball? What about the case when you stopped a ball? Ma'am, we are applying force. You are applying force, right? जब आपने बॉल को ऐसे करके रोका था तो आपने बॉल की तरफ फोर्स लगाया था. That means there was a body which was moving और वो मूविंग बॉडी को रोकने के लिए आपने फोर्स लगाया. Yes, ma'am. राइट? एम आई राइट? क्लियर है इतनी बात? Yes, ओके. ma'am. अब कोई ऐसी बॉडी जिसको मूव करने के लिए आपने फोर्स लगाया, ये तो आपने मूविंग बॉडी को रोकने के लिए फोर्स लगाया. कोई ऐसी बॉडी का एग्जांपल आपको याद है जिसको आपने जो ऑलरेडी रुकी हुई है, विच इज ऑलरेडी स्टेशनरी. स्टेशनरी क्या होता है? जो रुकी हुई है. जो रुकी हुई है. द बॉडी विच इज एट रेस्ट, राइट? है ना? ये बात क्लियर है? Yes, ma'am. By the way, hi. There was no hi and we very abruptly started the lesson, right? Yes, ma'am. Okay. So मैं एक छोटा सा एग्जांपल मुझे बताओ जिसमें कोई बॉडी ऑलरेडी इट इज इन मोशन एंड नहीं सॉरी बॉडी विच इज ऑलरेडी स्टेशनरी और उसको मूव करने के लिए आपने कोई फोर्स लगाया. मैं बॉक्स. नहीं, बॉक्स वाला पुराना हो गया. और कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ मुझे. अच्छा, हमको वो तो जो मॉल में नहीं होता वो. मॉल में क्या होता है?
ट्रॉली जिससे बोलते हैं। ओके, टू मूव अ ट्रॉली। यस ओके, मैम। कोई गाड़ी का एग्जांपल दे दो। एग्जांपल, गाड़ी, व्हेन अ कार इज स्टेशनरी, यस मैम। तो उसको आपको मूव करने के लिए थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा। यस मैम। आप पेडल पे फोर्स लगाओगे, पेडल इंजन पे फोर्स लगाएगा, एंड देन द कार रन्स। यस मैम। तो आपने कुछ फोर्स लगाया। यस मैम। या फिर डू यू राइड अ बाईसाइकिल? नो। नो, यू डोंट राइड अ बाईसाइकिल। कभी तो चलाई होगी लाइफ में, हाँ, कभी तो चलाई। कभी चलाई है। ओके, तो जब आपने बाईसाइकिल चलाई तो आपको अपने पेडल पे फोर्स लगाना पड़ा, तभी हाँ। साइकिल आगे की तरफ चली, हाँ। है ना। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स, दैट मीन्स कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन स्टॉप करने के लिए हमें थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ता है। क्लियर? यस मैम। ओके, आगे चलते हैं। We ordinarily experience this as a muscular effort, effort and say that we must push or hit or pull on an object to change its state of motion. The वेट concept of तो force, मतलब कि यहाँ पे हमने मस्कुलर फोर्स का यूज किया, मतलब कि हमने मस्कुलर एफर्ट अप्लाई किया किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को हिट करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने स्टेट ऑफ मोशन, उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। force is based on this कॉन्सेप्ट push, ऑफ फोर्स इज बेस्ड ऑन this push. हिट और पुल। मतलब फोर्स का सारा जो कॉन्सेप्ट है ना, हमने जैसे फोर्स को डिफाइन कर दिया, व्हाट इज अ फोर्स, तो आपने उसको सिंपल डिफाइन कर दिया, अ फोर्स इज अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट? क्लियर है? तो दैट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने के लिए दिस फोर्स इज रिक्वायर्ड। मतलब फोर्स का जो भी कॉन्सेप्ट है ना, वो सारा पुश पुल और हिट पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? Push, pull or hit. पुश पुल और हिट। Yes ma'am. ठीक है, चलो आगे चलते हैं। Let us now ponder about a force. What is it? In fact, no one has seen, tasted, or felt a force. However, we always see or feel that effect of a force. It can only be explained by describing what happens when a force is applied to an object. Pushing, hitting, and pulling of objects are always of bringing object in motion. राइट, तो They यहाँ move. पे हम ये बात तो समझ गए कि फोर्स को ना आप फील कर सकते हो, ना ही उसको आप टेस्ट कर सकते हो, सिर्फ उसके Yes, इफेक्ट्स को फील कर सकते हो, राइट? yes, ma'am. यही पढ़ा था ना लास्ट क्लास में। आपने कभी टेस्ट किया फोर्स? No, ma'am. नहीं किया? क्या पता कभी किया हो। नहीं किया. ये ऐसा नहीं हो। चलो ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं इसमें। They move because we make a force act on them. एग्जैक्टली, Find out. कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में आया है, वो इसलिए मोशन में आया है या इसलिए मूव कर रहा है क्योंकि आपने उसमें फोर्स अप्लाई किया है। Yes, ma'am. ओके ओके, लेट्स रीड फर्दर। From our studies in earlier classes, you are also familiar with the fact that a force can be used to change the magnitude or velocity of an object. हाँ, That मतलब is, कि फोर्स आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट का yes, ma'am. स्पीड चेंज करने के लिए, Yes, ma'am. राइट? फॉर एग्जाम्पल, अभी आप साइकिल चला रहे हो, फॉर एग्जाम्पल से अभी आप थोड़ा सा धीरे चला रहे हो, तो आपको रियलाइज हुआ कि आप और आपका जो फ्रेंड है, वो आपका फ्रेंड आपसे आगे निकल रहा है, राइट? तो अब क्या करोगे? अब आपको भी आगे निकलना है, तो आपने क्या करा? आपने और फोर्स लगाना शुरू कर दिया ताकि साइकिल की स्पीड इंक्रीज हो जाए, Yes, ma'am. राइट? सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ा, मतलब कि आपको फोर्स लगाना पड़ा टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ Yes, पे ma'am. लिखा है ना, ये लाइन फ्रॉम योर स्टडीज इन अर्ली क्लासेस, यू आर आल्सो फेमिलियर विद द फैक्ट दैट अ फोर्स कैन बी यूज्ड टू चेंज द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है वरुण? वरुण, Magnitude. व्हाट इज मैग्नीट्यूड? Magnitude means a numerical value which can change the magnitude. Magnitude is a numerical value. जैसे फॉर एग्जाम्पल से आप कितने किलोमीटर चल के गए, ठीक है? तो जो नंबर है ना, दैट न्यूमेरिकल वैल्यू 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, दिस इज द मैग्नीट्यूड। Yes, ma'am. ये जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, दैट इज द मैग्नीट्यूड। मतलब कि मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी का, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी होती है,
Yes, ma'am. पता है आपको? तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसको भी आप चेंज कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो, इंक्रीज भी कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप रोड पे अपना बाईसाइकिल चला रहे हो एंड नाउ यू नीड टू स्टॉप, तो आप एकदम से ब्रेक मारोगे, है ना? पहले आप चल रहे हो 26 किलोमीटर पर आवर पे, अब Yes, आप ma'am. चलोगे 25, 24, 23, 22, ऐसे से कम होती जाएगी ना आपकी Yes, वेलोसिटी, ma'am. है ना? तो यू कैन चेंज द मैग्नीट्यूड ऑल्सो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। Yes, क्लियर? ma'am. क्लियर दिस मच? चलो Yes, ma'am. आगे चलते That is to make the object move fast or slow, हैं। यही मैंने or बात to बताई change आपको, it. आप तेज भी चला सकते हो, आप उसको Yes, ma'am. स्लो डाउन भी कर सकते हो, राइट? Yes. अगला In एग्जांपल देखो। direction of motion, we always know that a force can change the shape and size of object. दैट मीन्स फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑल्सो। जैसे आपने बॉल को हिट किया था, Yes, ma'am. जब जब दिस इज द पर्सन हु इज टेकिंग द गोल, पेनल्टी ले रहा है, ये यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, एंड यू आर Yes, ma'am. स्टैंडिंग ओवर हियर, राइट? द पर्सन किक द बॉल फ्रॉम हियर, यहाँ पे आपने स्टॉप कर ली बॉल, Yes, ma'am. ठीक है। यहाँ पे जब आपने बॉल को स्टॉप कर लिया तो उसके बाद क्या हुआ, बॉल की डायरेक्शन वापस इस साइड पे हो जाएगी। पहले Yes, वो ma'am. बॉल की डायरेक्शन फ्रॉम दिस टू दिस थी, Yes, अब ma'am. बॉल की डायरेक्शन यहाँ से इधर चली जाएगी। दैट मीन्स आपने फोर्स लगाया और बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई, Yes, ma'am. ठीक है। अब शेप और साइज कैसे चेंज हो सकता है? जैसे आपने वो देखा है, आपने कभी क्ले से खेला है बचपन में? Yes, ma'am. तो क्ले को जब आप फोर्स लगाते हो तो उसका शेप चेंज हो जाती है। पहले वो स्क्वायर Yes, में ma'am. होता है, फिर उसको राउंड कर देते हो, फिर उससे डक बनाने लग जाते हो, कभी Yes, उससे ma'am. फुटबॉल बना के खेलने लग जाते हो, कभी उससे पेंसिल बनाने लग जाते हो। और क्या क्या बनाया आपने क्ले से? Ma'am, ज़्यादा कुछ नहीं. ज्यादा कुछ नहीं बनाया? अच्छा, आपने मम्मा को देखा कभी चपाती बनाते हुए? Yes, ma'am. तो व्हाट डज मम्मा डू? मम्मा डो लेते हैं थोड़ा सा अपने हैंड्स में, उसको राउंड बनाते हैं एंड देन शी अप्लाइज फोर्स टू Yes, फ्लैटन ma'am. द डो, Yes, है ना? ma'am. ऐसे ही तो करते हैं। और एग्जांपल दो, किस फोर्स लगा के आपने शेप चेंज करी हो किसी की? Spring. ओके, वेरी गुड। और और तो मैम स्पॉन्ज वाली बॉल जो होती है उसकी शेप भी चेंज हो जाती है जब हम फोर्स लगाते हैं, है ना? और तो मैम चलो एक दो एग्जांपल सब सोच के रखोगे, ये आपका होमवर्क है। यस मैम. ऐसे ऑब्जेक्ट जिस पे आपने फोर्स लगाया और उसकी शेप चेंज हो गई, यस मैम. ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है स्प्रिंग का, जो आपने बताया था, फोर्स लगाया उसकी शेप चेंज हो गई, चाहे उसको यस मैम. कंप्रेस किया चाहे उसको आपने एक्सपैंड किया। सिमिलरली एक रबर बॉल हमने ली, जब उसको हम प्रेस करेंगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, जब उसको हम रिलीज करेंगे तो भी उसकी शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है। यस मैम. चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। देखो ये बात तो बहुत क्लियर है हमें कि फोर्स हमारे ऊपर भी अप्लाई हो रहा है ना? लेकिन अब देखो कितने फोर्सेस आपको लगता है आपकी बॉडी पे अप्लाई हो रहे हैं? मुझे इस सिंपल से क्वेश्चन का जवाब दे दो बस। हम यहाँ पे खड़े हैं, वी आर स्टैंडिंग ओवर हियर, ठीक है। तो व्हाट डू यू थिंक दैट आर द नंबर ऑफ फोर्सेस दैट आर बीइंग अप्लाइड ऑन यू? जीरो. जीरो? ऐसे कैसे? जीरो फोर्सेस थोड़ी अप्लाई हो सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा आपके ऊपर, है ना? लग रहा है. क्योंकि अगर हम टॉम एंड जेरी थोड़ी है कि हम नीचे देखेंगे तभी हम गिरेंगे। टॉम एंड जेरी में होता है ऐसे तो, है ना? सो हम तो जैसे ही अगर हम ऐसे हो जाएंगे, रूफ के इधर को चले जाएंगे तो हम नीचे गिर जाएंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी अप्लाई हो रहा है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटी. ओके, ग्रेविटी क्या होता है? मैम जो वो होता है ना, वो होता है ना, क्या होता है मैम? जल्दी जल्दी बता दो वरुण। ग्रेविटी से ना हम लोग को बोलते अर्थ से ना क्या बोलते हैं, मतलब क्या बताऊं मैं, जैसे मैंने पैर छोड़ दिया नीचे गिर गया मैम, इसको बोलते हैं ग्रेविटी फोर्स. हाँ नहीं बोलते तो इसको है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं which attracts things टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. द अर्थ। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट बोले। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स विद व्हिच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये बोल सकते हैं। अब इस हिसाब से अभी अभी मैं बैठी हूँ ऐसे, ठीक है, अभी भी तो मुझ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो मैं अर्थ के सेंटर में क्यों नहीं जा रही? क्योंकि हमारे में वो है ना मैम, एक सरफेस है हमारे नीचे. तो सरफेस को तोड़ के अंदर चले जाओ। उतना भी स्ट्रांग नहीं है मैम, उतना भी स्ट्रांग नहीं है. ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग नहीं है तो फिर इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स तो मुझे पता ही नहीं है कोई दुनिया में।
नहीं स्ट्रॉन्ग है लेकिन उतना नहीं, क्यों स्ट्रांग नहीं है भाई? अगर ट्रक को आप ऊपर से, आपने देखा नहीं है कितने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं जब आप हिली एरिया में जाते हो? अगर कोई ट्रक माउंटेन से गिर जाए तो वो नीचे जाके गिरता है, तो इतना हैवी ट्रक को उसने खींच लिया, तो मैं तो फिर भी ट्रक जितनी हैवी नहीं हूँ। यस मैम। तो फिर एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज, जितने भी फोर्सेस हमारी बॉडी पे लग रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स मुझ पे अभी भी लग रहा है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे, मतलब मुझे पुल कर रहा है, ठीक है, लेकिन मेरी बॉडी भी एक इक्वल एंड नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रही है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से मैं नीचे नहीं जा रही, जिस सरफेस पे मैं बैठी हुई हूँ उसी सरफेस पे मैं बैठी हूँ। ऐसे तो मैं किसी चेयर पे भी बैठ जाऊँ तो भी चेयर में से ऐसे नीचे चली जाऊँ, क्यों? क्योंकि मेरे पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा यस मैम। है ना? ऐसे ही है ना? दैट मीन्स कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जो बैलेंस हो जाते हैं नेचर में, ठीक है, और उसके अनड्यू इफेक्ट्स नहीं होते हमारे ऊपर, राइट? तो वही बैलेंस फोर्सेस और अनबैलेंस फोर्सेस अब हम पढ़ने वाले हैं। इनकी इसकी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको अच्छे से करना है, ठीक है? इसमें से कोई क्वेश्चंस अभी तक जो हमने पढ़ा है, अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि चैप्टर का बेसिक क्या है, चैप्टर में है क्या, फोर्स क्या है, फोर्स के इफेक्ट्स क्या है, अभी तक हमने सिर्फ इतना पढ़ा है। और ये इतना आपने 8th क्लास में पढ़ लिया होगा ऑलरेडी, ठीक है? फोर्स एंड प्रेशर वाला जो चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा होगा, ठीक है? तो अब हम बात करेंगे, ये तो अब हमें जो बेसिक है, बेसिक्स आर वेरी क्लियर, ठीक है? बेसिक पिछले लेसन में और इस वाले लेसन में मैंने थोड़ा सा आपको टाइम देके क्लियर कर दिए सारे बेसिक्स। अब आपका क्या काम है, यहाँ से आपको बड़े ध्यान से सुनना है एंड नोट डाउन ईच एंड एवरी पॉइंट दैट आई से, ठीक है? लेट्स स्टार्ट रीडिंग। ये बड़ा ही अच्छा एग्जांपल उन्होंने कोट करके समझाया हुआ है आपको, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ओके, चलो लेट्स रीड। Show a wooden box on the horizontal table. Two string X and Y are tied to the two opposite face of the block S. So, if we apply a force by pulling the string X, the block begin to move to the right. Similar, if we pull the string Y, the block moves towards the left. नाउ देखो, अब हमने क्या किया, एक टेबल पे, ये देखो ये टेबल आपको दिख रहा होगा नीचे, ठीक है? इस टेबल पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे एक टेबल रखा, टेबल के ऊपर एक बॉक्स रख दिया, ठीक है? दो स्ट्रिंग्स लगाए, एक एक्स की डायरेक्शन में, एक वाई की डायरेक्शन, ठीक है? अब मैंने क्या किया, एक्स की डायरेक्शन से बॉक्स को पुल किया, ठीक है? सामने, वरुण आपको बासी आ रही है क्लास में? इतना बोरिंग तो मैंने कुछ नहीं पढ़ाया। नहीं मैं समझ रहा हूँ ना, तो समझते में कभी को हरा जाती है। समझते बासी नहीं आती, अगर आप अच्छे समझ रहे हो फिर बासी नहीं आएगी। चलो देखो, लुक एट मी, एक बॉक्स हमने रखा है टेबल पे, ठीक है? बॉक्स में हम क्या कर रहे हैं कि एक साइड पे हमने एक्स डायरेक्शन में हमने थ्रेड बांध दी और एक साइड पे हमने वाई डायरेक्शन में बांध दिया, ठीक है? अब एक्स डायरेक्शन वाली साइड पे मैं खड़ी हूँ, वाई डायरेक्शन वाली साइड पे आप खड़े हो, ठीक है? हम क्या कर रहे हैं, हम गेम खेलने वाले हैं और हम ये चेक करने वाले हैं कि वरुण के पास ज्यादा पावर है कि मेरे पास ज्यादा पावर है, ठीक है? तो हमने क्या किया, मैंने आपको बोला कि वरुण फोर्स अप्लाई करना है, मैं भी अप्लाई करूंगी, लेकिन कंडीशन अभी ये है कि पहले मैं करूंगी उसके बाद आप करोगे, ठीक है? मैंने एक्स की तरफ फोर्स लगाया, बॉक्स को अपनी तरफ खींच लिया, आपने बोला कि मैम मैं भी खींचूंगा, आपने भी फोर्स लगाया, आपने वाई की तरफ खींच लिया। तो पहले जब मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो बॉक्स इस डायरेक्शन में गया, लेकिन जब आपने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन तो बॉक्स इस डायरेक्शन में मूव हो गया। यस मैम। ठीक है, चलो आगे रीड करते हैं इसको। चलो यहाँ पे देना, similarly if you pull the string by, but if the block is pull from the between side from both the sides, from both the side with equal force are called balance force and the block will not move. आपने एक लाइन मिस कर दी, the block will not move, such forces are called balanced forces। and लाइन ना बहुत इंपॉर्टेंट, बेटा एक मिनट रुको, ये लाइन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मैं मार्क कर रही हूँ। आप एक क्वेश्चन भी लिख लो यहाँ पे, व्हाट आर बैलेंस्ड फोर्सेस? मैं तो बताया मेरे को क्या होता है, बताओ मैम। जैसे कि दोनों तरफ से क्या होते हैं, एक न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो उसको बैलेंस बोलते हैं। क्या दोबारा बोलना मैम। दोनों तरफ से अगर मैम एक मतलब न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना, जैसे कि यहाँ से भी 10 वहां से भी 10, तो उससे बोलेंगे बैलेंस फोर्स। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर आप और मैं एक्स और वाई की डायरेक्शन में सेम फोर्स लगा रहे हैं तो दैट फोर्स इज नोन एज बैलेंस फोर्स। फिर भी एक ही पॉइंट नोट डाउन कर लो, आप इसका आंसर मुझे लिख के बताओगे प्रॉपर साइंटिफिक टर्म्स में। व्हाट इज अ बैलेंस फोर्स? व्हाट आर बैलेंस फोर्सेस?
Yes, ma'am. Yeah. लिख लिया? ये वाला पॉइंट भी नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा? ये जो मैं मार्क कर रही हूँ। Yes, ma'am. हमको नहीं दिख रहा हाईलाइट वाला। हाँ, हाईलाइट वाला नहीं दिख रहा? एक मिनट, अभी दिखे। अब दिख रहा है? नोटेड? ओके, नाउ ये तो हो गए बैलेंस फोर्सेस, ठीक है। अब हम एक ऐसा केस कंसिडर करते हैं जहां पे हम बात करेंगे। अब आपको तो आ गया, आप तो ये सोच रहे हो कि मैम ने भी अप्लाई कर दिया, मैंने भी अप्लाई कर दिया, तो हम ये बॉक्स मूव नहीं कर रहा, तो मैंने बोल दिया कि हम दोनों के पास इक्वल पावर है। बट यू डिनाई, यू से दैट नो, आई हैव मोर पावर देन यू बिकॉज आई एम अ फुटबॉलर, सो मेरे पास आपसे ज्यादा पावर है। आपने मुझे ये बात बोली, Yes, ठीक ma'am. है। इस सिचुएशन में क्या होगा, एक्स फोर्स लगा रहा है, मतलब मैं फोर्स लगा रही हूँ, आपको तो आ गया गुस्सा कि मैम कैसे ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, तो आपने यहाँ से ज्यादा फोर्स लगाना शुरू कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, बॉक्स विल बी पुल्ड टुवर्ड्स यू, बॉक्स आपकी तरफ आ जाएगा। Yes, ma'am. ऐसे तो होगा ना। तो in this case the kind of forces that are applied on the object are known as unbalanced Yes, forces. Unbalanced forces, ठीक Yes, है, ma'am. कि बॉक्स की मोशन जो है वो चेंज हो गई है, ठीक Yes, है। ma'am. चलो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। Yes, ma'am. Now let us consider a situation in which two opposite forces of different magnitude pull the block. In this case, the block would begin to move in the direction of the great force. Thus, the two forces are not balanced, and the unbalanced force act in the direction the block moves. This suggests that an unbalanced force act on and force brings it हाँ in हाँ, आपने motion. गलत पढ़ लिया। This suggests that an unbalanced force acting on an object brings it in motion, ठीक है। Yes, ma'am. मतलब कि जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा लगेगा उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा इन टर्म्स ऑफ, इन केस ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस, Yes, ma'am. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाट आर अनबैलेंस्ड फोर्सेस? Yes, ma'am. चलो आगे रीड करते हैं। Here it is. What happened when some children try to push a box to a rough floor On a rough floor. on a rough floor if they push the देखो, अब जब आप बॉक्स मूव कर रहे हो थोड़ी सी फ्रिक्शन एक्ट करेगी फ्लोर Yes, की ma'am. वजह से, करेगी ना। Hmm. तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि दो बच्चों को खड़ा कर दिया एक साइड पे। फिगर ए में देखो ध्यान से, Yes, दो बच्चों ने पुश करना स्टार्ट कर दिया, ma'am. ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रहा, आपने थोड़ा सा फोर्स और बढ़ाना शुरू किया, Uh, अब हल्का हल्का ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा। थोड़ा सा और फोर्स बढ़ाओगे तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल मूव करने लगेगा, प्रॉपर मोशन में आ जाएगा, yes, ma'am. ठीक है। चलो लेट्स रीड व्हाट हैपेंस व्हेन सम चिल्ड्रन ट्राई टू पुश अ बॉक्स ऑन अ रफ फ्लोर। Hmm. If they push the box, बॉक्स विद स्मॉल फोर्स, the box does not move because of friction act in the direction opposite ऑपोजिट टू दी the पुश। मतलब push. पुश आपने इस डायरेक्शन में किया है, फ्रिक्शन पुश आपने इस डायरेक्शन में किया है, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो बॉक्स मूव नहीं कर पाएगा। Friction force
rise between two surfaces in contact, in this case between the bottom of the box and floor's rough surface. It balances the push force and therefore the box does not move. In figure, Right. the children push the box harder, but the box still does not move. This is because the friction force still balanced. The pushing box force, if the children push the box harder still, दोबारा से पढ़ो इस लाइन को, आप ठीक से नहीं पढ़ रहे. if the children push the box harder still, the pushing force become bigger than the friction force. There is an unable force. So Unbalanced force. Unable नहीं, unbalanced force. unbalanced force. देखो, So the पहले box केस में क्या था, सुनो मेरी बात, पहले केस में क्या था, इस केस में ए पार्ट में कि बच्चे पुश कर रहे थे लेकिन बॉक्स नहीं हिल रहा था. सेकंड केस में क्या हुआ कि बच्चे ने थोड़ा सा और फोर्स लगाया तो बॉक्स अभी भी हिल तो नहीं रहा है, लेकिन इतना फोर्स लगा दी कि अगर इसके बाद इतना सा भी अगर एक्स्ट्रा फोर्स लगा देंगे तो बॉक्स मूव कर जाएगा. ठीक है, मतलब ए और बी केस में बैलेंस फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं बॉक्स के ऊपर. ठीक है, लेकिन सी केस में क्या हुआ कि बच्चों ने इतना ज्यादा फोर्स लगा दिया कि वो फ्रिक्शन के फोर्स को ओवरकम कर गया, और जिस तरफ बॉक्स ने मूव करना शुरू कर दिया उस डायरेक्शन में हम ये बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स ने एक्ट करना शुरू कर दिया. क्लियर? चलो, लेट्स स्टार्ट रीडिंग. What happened when we ride a bicycle? 1 minute. Okay, please start reading. We ride a bicycle. When you stop pedaling, the bicycle begins to slow down. अपनी This क्वेश्चन is लिख रहे हो, again what are unbalanced forces? again because of the friction force acts opposite to the direction of motion. In order to keep the bicycle moving, we have to start pedaling again. It Right. does appear that an object maintains its motion under the constituencies application Constituencies नहीं, continuous motion. continuous application of an unbalanced force. However, अच्छा, अब इस बात से एक मिनट बात सुनो. अब इस बात से आपने क्या सीखा? When you are bicycling, तब तो साइकिल चलती जा रही है, लेकिन जैसे ही आप स्टॉप कर दोगे तो बाइसाइकिल क्यों रुक जाती है? क्योंकि बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स वहां पे लग गया ना, इसलिए. फ्रिक्शनल फोर्स लग गया तो दैट मींस आप जो फोर्स लगा रहे हो बाइसाइकिल पे वो फ्रिक्शनल फोर्स से कम है. ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स उस ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में लेके आने की कोशिश करती है ताकि आपकी जो साइकिल है वो रुक जाए. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. However, it is quite incorrect. An object moves with a uniform velocity when the pushing force and friction when the forces pushing force and frictional force and on the object acting are on the balanced object are balanced and there is no net external force on it. If an unbalanced force is applied on the object, there will be a change either in its speed or in the direction of its motion. Right. Thus ये एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट, नोट कर लो इसको.
Done? No. Done? एक बार इस पॉइंट को रीड करो. If an unbalanced force is applied on the object, there will be a change either in its speed or in the direction of its motion. Thus, मतलब अगर अनबैलेंस्ड फोर्स आप अप्लाई करोगे तभी उसकी ऑब्जेक्ट की स्पीड में या फिर उसके डायरेक्शन में कोई चेंज आएगा. ठीक है. अनबैलेंस्ड फोर्स ही है, लगा रहे हैं हम साइकिल पे भी या गाड़ी पे भी या किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तभी उसका मोशन प्ले में हो रहा है या फिर उसकी कोई डायरेक्शन चेंज हो रही है. ओके, चलो आगे पढ़ो. Thus to accelerate the object, thus to accelerate the motion of an object and enable unbalanced force is is required. मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को एक्सेलरेट करने के लिए, मतलब या तो स्पीड कम करने के लिए या तो स्पीड बढ़ाने के लिए आपको अनबैलेंस्ड फोर्स उस पे लगाना पड़ता है. एंड द चेंज इन इट्स स्पीड or in the direction of motion would continue as long as this unbalanced force is required. ये भी एक नेक्स्ट पॉइंट डाल के नोट कर लो. नेक्स्ट लाइन. The change in the speed or direction of motion would continue as long as this unbalanced force is applied. मतलब कि जब तक unbalanced force उस पे अप्लाई हो रहा है तब तक की उसकी स्पीड चेंज होती रहेगी या चेंज होती रहेगी, ज्यादा होती रहेगी या कम होती रहेगी, या तब तक ही उसका डायरेक्शन जो है चेंज हो रहा है. ठीक है. कहाँ पर बताते ये वाला पॉइंट देखो. हाँ, इन द चेंज. एंड मत लिखना, एक नया पॉइंट बना लो अलग से. द चेंज in its speed, the change in the speed of an object, या ऐसे लिखो, the change in the speed or direction of motion of an object, the change in speed or motion of direction of an object will continue, or direction of motion of an object will continue as long as unbalanced force is applied. Object will continue as long as an unbalanced force is applied. Will continue as long as an unbalanced force is applied. Yes, sir. Done? Okay. मैं ये ना इरेज कर देती हूँ, ठीक है. आगे चलते हैं. However, if this force is removed completely, the object would continue to move with the velocity it has acquired till then. ठीक है. अगर आपने अनबैलेंस्ड फोर्स हटा दिया तब क्या होगा? तो मैम वो बैलेंस फोर्स हो जाएगी मैम. बैलेंस फोर्स हो जाएगा तो उसी स्पीड से मूव करता रहेगा. ठीक है. जैसे आपने मान लो से किसी बॉडी पे आपने एक्स्ट्रा फोर्स लगाया, जैसे गाड़ी पे आपने फोर्स लगाया, ठीक है, और आपने उसकी वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा के आपने उसकी वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर कर दी. ठीक है. जब आपने उसकी वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर कर दी और अब आपने फोर्स लगाना हटा दिया, ठीक है, तो वो उसके उसी स्पीड से चलेगा जिस स्पीड पे आपने उसको रखा है. हाँ, उसको रखा है. ठीक है. लेकिन यहाँ पे एक और फिनोमेना भी देखने वाला है. आपके व्हीकल की वेलोसिटी कम होती चली जाएगी. क्यों? क्योंकि उस पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करना शुरू कर देगा. अगर फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट नहीं कर रहा, कोई फोर्स भी एक्ट नहीं कर रहा उस पे, तो वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलती रहेगी. लेकिन नेचर में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. ऐसा होता है कभी कि हम ऐसे बॉल रोल करें ग्राउंड में और बॉल उसी स्पीड से चलती रहे चलती रहे चलती रहे चलती रहे? ऐसा होता है कभी? हुआ है कभी आपके साथ ऐसे? नहीं हुआ ना, कि आपने बॉल को किक करी और किक करते ही वो एकदम स्टेडियम से भी बाहर, अर्थ से भी बाहर, इंडिया से भी बाहर और अर्थ से भी बाहर चली गई हो? नहीं हुआ? पक्का? कभी ऐसा कोई एग्जांपल आपको याद आया हो? ये तो सिर्फ टॉम एंड जेरी में ही होता है कि उसने किक करी और अर्थ से ही बाहर हो गई बॉल, है ना.
Yes, ma'am. Which is your favorite cartoon character? ऐसा तो कुछ नहीं है. ऐसा कुछ भी नहीं है. What do you watch basically? कुछ भी नहीं मैम. Nothing. नहीं मैम, मूवीज. कौन सी मूवी देखते हो आप? सलमान खान फैन? हाँ, सलमान खान फैन? नहीं मैम, सलमान खान तो ओवररेटेड है. बस देखता हूँ, फैन तो किसी का नहीं हूँ. अच्छा. अच्छा, कौन सी मूवी देखी थी लास्ट आपने? एक्शन मूवी बताओ कोई. लास्ट एक्शन मूवी शेरशाह. तो उसमें आपने गन्स की वो देखी थी? वैसे मैंने शेरशाह देखी नहीं है. जो जो गन्स की मोशन होती है. उसकी तो मैं रोज देखता हूँ. अच्छा चलो, अगर 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 हम ऐसे बात करें कि मान लो किसी ने किसी पे गन शॉट किया फॉर हाँ. एग्जाम्पल, तो फिर तो मतलब हाँ, हमें पता है कि गोली किसी ने मारी, किसी को हाँ. लग गई और लग के उसकी बॉडी के अंदर रह गई, है ना, जो बुलेट होती है. हम्म. अगर उस पे अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ही ना हो, ठीक है, मतलब फोर्स उस पे अप्लाई कर दिया गन ने, हाँ. बुलेट फायर हो गई, वो किसी की हम्म. बॉडी में घुस गई, मान लो उस पे जो बॉडी बॉडी भी तो कोई रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाई कर रही है ना. हाँ. मान लो जो बॉडी फोर्स अप्लाई कर रही है वो फोर्स अप्लाई ही ना हो, कोई एयर चली रेजिस्टेंस जाएगी ना हो, सर कोई के. कुछ ना हो, चली जाएगी. तो फिर तो गन आगे चलती जाएगी. ऐसा तो नहीं होता ना, लेकिन नहीं, कहीं का हो जाता है ना. ऐसे कैसे होता है? हम अगर आकाश में से करके ठुश करके चला दी तो सब तो तो चलती फिर जाएगी फिर सर फिर के. भी तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस पर लगेगा नहीं, तो वो तो नीचे आ जाएगी, हाँ, ये सब हो गया. हाँ. है ना. अगर मान लो फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी नहीं लग रहा, कोई फोर्स उस पर लग ही नहीं रहा, अगर ऐसा केस है, तो फिर वो तो यूनिवर्स में चली जाएगी, मुझे लगता हाँ मैम, हो जाएगा. है ना. हाँ. लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है ना, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. हम करते हैं मैं एक्सपेरिमेंट. गन शॉट का एक्सपेरिमेंट करोगे आप? हैं? सच में? डू यू हैव अ गन? नो. फिर आप बॉल का कर लेना, फुटबॉल का, ठीक है, फुटबॉल को ऐसे फुटबॉल फेंकना. का तो ऐसे भी नहीं होगा क्यों? मैम. फुटबॉल का तो मतलब फुटबॉल नहीं है क्या आपके पास? नहीं है, तो फिर पर पर खेले हुए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करे बहुत टाइम हो गया. नहीं मैम. तो फिर तो फिर मतलब फुटबॉल का तो मैम ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाएगी तो कुछ. तो बुलेट पे भी तो ग्रेविटी लगेगी. तो बुलेट पे तुम्हें ग्रेविटी नहीं बंदूक लगेगी? चलाने का मौका तो मिलेगा पहली बार लाइफ में. अच्छा. हम्म. आई डोंट एनकरेज सच थिंग्स, ठीक है. अरे मैम. चलो ठीक है. अब पढ़ते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ऐसा. बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सारी फिजिक्स, ठीक है, जितनी भी आपकी न्यूटोनियन फिजिक्स है ना, वो सारी फर्स्ट लॉ पे बेस्ड है. फर्स्ट, ओके. सेकंड, थर्ड, तीनों लॉज, ठीक है. ऐसा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब तक आप फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, तब तक आपको ये टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है. एक नेक्स्ट हेडिंग डालो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. डन. नो मैम, नो डन. आज वरुण बिल्कुल ऐसे मस्ती वाले मूड में है. मैम मैं तो गन चला के देखूंगा, है वरुण? ऐसा क्या हुआ आज? कुछ भी तो नहीं. फिर ऐसा मस्ती वाला मूड कहाँ से आया? मैं तो ऐसे ही आ जाता है कभी कभार. ये सुन डाल मैसेज भी दिया. करा दिया आपने लेकिन. डाल दिया. चले पढ़े. ये सब. चलो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. कहाँ पर? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बाय ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट The motion of an object in ऑन एन on an inclined इंक्लाइंड plane. प्लेन. इंक्लाइंड प्लेन वो होता है जैसे कोई भी सरफेस से थोड़ा सा ऊपर ऐसे करके उठा दो ना, Inclined plane. Yes, ये जो प्लेन होता है ना, दिस इज कॉल्ड इंक्लाइंड प्लेन. मतलब अर्थ से थोड़े से किसी पर्टिकुलर एंगल पे, ये इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है ना, देखो, है ना, इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है. yes, अर्थ से किसी पर्टिकुलर एंगल पे अगर कोई सरफेस है, इसको बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है. plane. Yes, Galileo Galileo. deduced that objects move with a constant speed when no force acts on them. मतलब कि ऑब्जेक्ट्स की मोशन को गैलीलियो ने इंक्लाइंड प्लेन पे ऑब्जर्व किया. मतलब इसी इसी तरह के एक प्लेन पे गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे. हाँ. उन्होंने सारे ऑब्जेक्ट्स की मोशन को ऑब्जर्व किया, और उन्होंने ये पाया, उसमें से उन्होंने ये चीज डिड्यूस करी उसमें से, कि जब कोई ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं भी लग रहा, तो वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, ठीक है. Yes, ma'am. चलो आगे पढ़ो. He observed observed that when a marble rolled down an incident plane,
its velocity inclined plane its velocity increase in the next उन्होंने chapter. ये देखा कि किसी भी मार्बल को अगर उन्होंने रोल किया इंक्लाइन प्लेन से नीचे तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. मतलब यहाँ से उन्होंने क्या किया, यहाँ से एक बॉल ली छोटी सी, उसको उन्होंने मार्बल बोले, यहाँ से उन्होंने बॉल ली और यहाँ से उसको रोल करने दिया. वो रोल होते 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 जैसे जैसे वो नीचे जा रही थी, जब वो ऊपर थी तो उसकी वेलोसिटी कम थी, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे पहुंची उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली गई. ठीक है, चलो आगे बढ़ो. Unbalanced force of gravity In the as next it moves. chapter you will learn. The next chapter you will learn that the marble fall under the unbalanced force of gravity as it rolls down and attains A definite velocity by the time it by the reaches the time bottom. नेक्स्ट चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जैसे ही मार्बल जो है वो अर्थ पे पहुंच जाता है तो वो एक डेफिनेट वेलोसिटी, मतलब किसी कोई पर्टिकुलर वैल्यू अटेन कर लेता है वेलोसिटी की. वो वेलोसिटी की वैल्यू क्या है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे. ठीक है, चलो. velocity decrease when it climbs up as showing figure 9.5b. So a marble. रुको 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 रुको, देखो जब ये ऑब्जेक्ट ए फिगर में देखो जो मार्बल है, मार्बल ऊपर से नीचे आ रहा है, ये जो है ना, ये जो ट्राइंगल सा बना हुआ दिख रहे हो आप, ये है इंक्लाइन प्लेन. ठीक है. ए फिगर में क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इस फिगर में ये ऑब्जर्व किया गया कि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे रोल करता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है. ठीक है. लेकिन बी फिगर में उन्होंने क्या किया, बॉल को वापस नीचे से ऊपर फेंकने की कोशिश करी गई, ऊपर नीचे से ऊपर रोल करने की कोशिश करी गई. तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया जब कोई भी मार्बल नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी में एक डिक्री मतलब एक डिक्रीमेंट है, मतलब वेलोसिटी उसकी कम हो रही है. ठीक है. जैसे ऊपर से नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रही है, ऊपर से नीचे इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी, और नीचे से ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. Decrease showing a marble resting on an ideal frictionless plane. Ideal frictionless plane inclined on both the sides. Side of top bottom sides. Galileo bottom नहीं, both the sides. Galileo argued that when the marble is relaxed from left, released from left, it would roll down the slope and go up on the opposite side to the same height from which it was released. तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि जैसे ही इस वाले साइड से, इस वाले ए से देखो, उन्होंने क्या बोला कि जैसे ए से बॉल नीचे गिरेगी, यहाँ से गिर के वापस बी पे ऊपर चढ़ जाएगी और उतनी हाइट पे चले जाएगी जितनी हाइट से वो नीचे गिरी थी ए से. ठीक है. मतलब कि उनका कहने का मतलब ये था कि अगर बॉल को उन्होंने यहां से रोल किया है, ठीक है, तो बी फिगर में भी वो यहां तक ही ऊपर जाएगी. लेकिन अभी तो हम ये ऐसे ऐसे काम तो हम बड़े कर लेते हैं अपने घरों में. तो व्हाट डू यू थिंक, क्या ऐसा होता है? हाँ मैम, होता है. हाँ. मतलब बी में वो ऊपर तक जाएगी मैम, डी में ना ऊपर नहीं जाएगी मैम, बीच में कहीं मतलब जाके वापस आ जाएगी. चलो ठीक है, फिर आप कह रहे हो तो मैं मान लेती. यस सर. फिर हम आगे पढ़ लेते हैं कि एग्जैक्टली है क्या कहानी. ठीक है, चलो. मैम कहाँ पर? मुझे लगता है if the incident plane on the boat. एक मिनट. Galileo argued that when the marble is released from left, it would slope. It will roll down the slope and go up on the opposite side to the same height from which it was released. आगे पढ़ो. If the inclinations of the plane on both sides are equal, then the marble will climb the same distance that is covered while rolling down. मतलब कि अगर दोनों का इंक्लिनेशन सेम है, इंक्लिनेशन मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना कि एंगल पे है ना, अगर ये वाला एंगल जो फॉर्म हो रहा है, ये वाला जो एंगल है ना, अगर ये एंगल दोनों का सेम है और सरफेस भी उतनी ही स्मूथ है, तो वो उतनी हाइट जाएगी जितना डिस्टेंस रोलिंग ऑब्जेक्ट ने यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर किया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर किया ना रोलिंग ऑब्जेक्ट ने, इतना ही डिस्टेंस वो दूसरे इंक्लाइन प्लेन पे भी कवर करेगा. गैलीलियो ने ये बोला था. ओके. ठीक है, चलो आगे पढ़े.
if the कंडीशन क्या है, angle, कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है। हम दोनों की हाइट सेम होनी चाहिए, क्या बोलते हैं, दोनों स्मूथ सरफेस जितना वो है, मतलब दोनों नहीं, सेम होना हाइट चाहिए एक नहीं, तरफ से। हाइट इज अ डिफरेंट थिंग। इंक्लिनेशन, यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन दोनों का सेम होना चाहिए। यस मैम, इंक्लिनेशन मतलब ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हाँ है ना, ये सेम होना चाहिए। यस क्योंकि मैम, हो सकता है कि अगर ये वाला इंक्लाइन प्लेन ऐसा है और दूसरा वाला आप ऐसे रख लोगे तो फिर यहाँ पे तो वो चढ़ ही नहीं पाएगा ना। मान लो आपने यहाँ से बॉल स्लाइड करी, ठीक है, और जो दूसरा मेरा इंक्लाइन प्लेन है वो इतना 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 ज्यादा इंक्लाइंड हो जाए, तो यहाँ पे बॉल चढ़ेगी कैसे? चढ़ ही नहीं पाएगी मेरी बॉल तो। चढ़ पाएगी कोई? नहीं। तो मतलब सरफेस जो होनी चाहिए, तो वो स्मूथ होनी चाहिए, और जो ये जो एंगल होना चाहिए ना, ये दोनों का सेम होना चाहिए। यस मैम, क्लियर? समझ में आ यस गया मैम। इतना? चलो आगे पढ़ो। If the angle of inclination of इंक्लाइनेशन नहीं, इंक्लिनेशन। inclination इंक्लिनेशन। of the right side plane were gradually decrease ग्रेजुअली gradually decrease, then the marble would travel further distance till it till it reaches the original height। height. अब वो ये कह रहा है कि अगर हम इंक्लिनेशन का एंगल, जैसे पहले इतना था, ये इंक्लिनेशन का एंगल अगर हम कम करते चले जाएंगे तो वो एक्चुअली उतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा जितनी उसकी हाइट है। ठीक है, हाइट समझ रहे हो? जितनी उसकी हाइट है ना ग्राउंड से, उतना डिस्टेंस वो एक्चुअली ट्रैवल करेगा। ठीक है, क्लियर है? दिस मच Yes, ma'am. कॉन्सेप्ट इज क्लियर। चलो Yes, आगे ma'am. चलो। If the right side plane were unlimited, were ultimately made horizontal। horizontal, that is the slope is reduced to zero. The marble would continue to travel forever, try to reach the same height that it was released रिलीज from फ्रॉम। अब the. देखो, अगर राइट हैंड साइड वाला जो प्लेन था उसको अगर हम फ्लैट कर देंगे, ठीक है, ये वाला तो हमारा हॉरिजॉन्टल है ही, इस वाले को अगर हम सॉरी, ये वाला तो हमारा इंक्लाइंड है, इस वाले को अगर हम फ्लैट कर देंगे तो यहाँ से वो बॉल चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, तब तक चलती रहेगी जब तक वो अपनी एक्चुअल हाइट का डिस्टेंस जो है कवर नहीं कर ले। ठीक है, तभी तो ऐसा होता है ना, जब हम आपने वो वाला स्विंग झूला है, वो वाला जो होता है इंक्लाइन प्लेन जो होता है पार्क्स में, हाँ मैं वो ऐसा सीढ़ी सीढ़ी चढ़ के जाते हैं और ऐसे ये सुन, हाँ स्लिप हाँ करते करते आ जाते हैं उसमें से। हाँ तो हमारी एक टेंडेंसी होती है कि हम उसमें बहुत आगे की तरफ, मतलब जहां पे झूला खत्म हो जाता है उसके भी हम आगे की तरफ चले जाते हैं, खुद को हाँ, रोकना पड़ता है हमें। कभी करा कभार है हाँ मैंने, ये है ना? सब। तो अगर हम खुद को नहीं रोके ना, हम उतनी ही आगे चले जाएंगे जितनी हमने हाइट कवर करी है एक्चुअली। मतलब उतने आगे चले जाएंगे तो हम ऐसा करके उठ जाएंगे मैम। हाँ, उड़ जाएंगे। उसमें भी एक केस है, अगर फ्रिक्शन हमारी बॉडी पे अप्लाई नहीं हो रहा, हम स्लिप कर रहे हैं। देखो, दो मोशन होते हैं, एक होता है स्लिप करना और एक होता है रोल करना। ठीक है, रोल करने में और स्लिप करने में बहुत फर्क है। पेंसिल को अगर आप किसी इंक्लाइन प्लेन से नीचे फेंकोगे तो वो रोल करेगी, स्लिप नहीं करेगी। लेकिन यही आप किसी बॉक्स को ऊपर से नीचे फेंकोगे तो वो स्लिप करेगा, रोल नहीं करेगा। ओके, ठीक मतलब है, हल्की चीज रोल करती है, पेंसिल हल्की चीज रोल करती है। नहीं नहीं नहीं, बात हल्की चीज की नहीं है, बात है कि स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर। अच्छा अच्छा समझिए मैं, समझ हाँ गए? समझिए, हाँ क्योंकि जो जो ऑब्जेक्ट सिलेंड्रिकल होगा वो तो रोल करेगा, हाँ और हाँ जो ऑब्जेक्ट किसी और शेप में होगा वो तो हाँ मतलब वो तो स्लिप करेगा, वो रोल नहीं कर सकता ना। तो जो रोलिंग फ्रिक्शन है, रोलिंग ऑब्जेक्ट है, उसपे फ्रिक्शन कम अप्लाई हो रही है, लेकिन जो बॉडी स्लिप कर रही है ना, उसपे फ्रिक्शन ज्यादा अप्लाई होती है। जैसे हमारी कोई, हम तो सिलेंडर है नहीं, हम्म, तो हम तो बॉक्स की तरह ही है, बॉक्स जैसे स्लिप करता है वैसे ही हम भी स्लिप करेंगे, तो हमारे पर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा लगती है, yes, ma'am. इसलिए हम उतनी आगे तक नहीं जा सकते। यही अगर ऐसा होता कि हमारी बॉडी पे फ्रिक्शन नहीं लग रही होती, तो हम भी उतना ही डिस्टेंस कवर करते जितना वो बॉल करती या कोई Okay, ma'am. सिलेंड्रिकल बॉडी बॉडी करती। Okay, ma'am. ठीक है, चलो आगे रीड करते हैं। The unbalanced force on the marble in this case are zero. आर जीरो। क्यों अनबैलेंस फोर्सेस जीरो है? हम अनबैलेंस फोर्स इसलिए जीरो है क्योंकि बैलेंस फोर्स लग रहा है। अच्छा, हमें ये भी तो हो सकता है ना, अनबैलेंस फोर्स जीरो, बैलेंस लग रहा होगा तभी। अब ये होमवर्क लिखो। इस केस में यू हैव टू फाइंड आउट व्हाई आर अनबैलेंस फोर्सेस जीरो इन दिस केस। Why? आर अनबैलेंस फोर्सेस जीरो इन दिस केस। Yes, ma'am. डन। Yes, ma'am. चलो आगे रीड करते हैं। The unbalanced force on the marble
in this case are zero. Hmm. It thus suggests that an unbalanced force is required to change its motion of the marble, but not net force is needed to substance. no net force is No net needed to force sustain the uniform motion of an इस लाइन को substance. नोट करो, इस लाइन को नोट करो, Yes, ma'am. मैं मार्क कर रही हूँ, जरा उसको नोट करना. Yes, ma'am. नोट कर लिया? वरुण, when are your exams, final exams? मैम वो तो अब अगले महीने है, अगले साल है, दिसंबर में. दिसंबर में मतलब? अभी तो मैं अभी प्रमोट होके 9th में आया हूँ ना, इसलिए. ओके, तो दिसंबर में थोड़े होंगे, फिर तो जनवरी फरवरी में होंगे ना? नहीं मैम, मेरा तो क्या, वो तो विंटर क्लोजिंग स्कूल है ना, इसलिए. ओके, तो आपके अब दिसंबर में होंगे एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम्स. अच्छा, तो फिर तो वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू कवर ऑल द टॉपिक्स वेरी प्रिसाइसली, बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे हम. यस मैम. है ना? चलो ठीक है. व्हाट बोर्ड इज इट? मैम सीबीएसई. सीबीएसई, ओके. तो एनी बुक्स दैट आर रेफर्ड फ्रॉम योर स्कूल जो आप फॉलो कर रहे हो? नो मैम, नो. ओनली एनसीईआरटी? यस. ओके, फाइन. हाँ जी मैम, मैं वरुण का फादर हूँ. हेलो सर. हाँ जी, ये एक्चुअली बोर्डिंग में रहता है. ओके. So that was my concern कि मैं यही जानना चाहती थी कि वरुण के एग्जाम्स बेसिकली कब होंगे. हाँ, ये जस्ट अभी दिसंबर में होता है ना, हिमाचल में दिसंबर में फाइनल होता है. ओके. नवंबर दिसंबर में फाइनल होता है. तो 8 पास होकर जस्ट 9 में आया हुआ है. तो अभी 2 महीने मार्च में फिर चला जाएगा वापस. ओके. तो अच्छा, मतलब अब मार्च से वापस वरुण इज गोइंग फॉर बोर्डिंग स्कूल, राइट? हाँ. ओके, ठीक है. इनका हिमाचल का है तो थोड़ा सा दूसरा पैटर्न है, इनका दिसंबर में फाइनल होता है. ओके. सीबीएसई है, सेम बुक है. हाँ, मेरा यही कंसर्न था क्योंकि जो बाकी जो स्कूल्स का पैटर्न है वो हमारे फरवरी मार्च में होता है. हाँ, इनका दिसंबर में होता है. हाँ, सिर्फ बोर्ड जो है उनका 10th का जो बोर्ड होगा तब वो मार्च में होगा. अच्छा, ठीक है. बाकी 9 तक इनका पूरा दिसंबर में ही फाइनल कर देते हैं. मतलब अब हमारे पास दिसंबर तक का टाइम है टू कवर ऑल द टॉपिक्स. तब तक तो बहुत अच्छे से कर लेंगे हम. हमारी सारी चीजें टिप्स पे होंगी, है ना वरुण? आपको पता होना चाहिए कितना फोर्स लगाना है बॉल पे. चलो, नोट कर लिया ये? ओके, चलो आगे देखो. इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस इट इज डिफिकल्ट टू अचीव ए जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स. मतलब अगर हम प्रैक्टिकलिटी की बात करें, अगर हम इस तरीके से बात करें कि क्या हम जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स अचीव कर सकते हैं, तो हम नहीं अचीव कर सकते. ठीक है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिख लो. इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस इट इज डिफिकल्ट टू अचीव अ जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स. प्रैक्टिकल सिचुएशन. In practical situations, it is difficult to achieve a zero unbalanced force. अभी आपकी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई ना स्कूल में वरुण? अभी एक भी क्लास नहीं हुई ना? ओके. चलो, आप स्कूल जाओगे तो आपको पता चल जाएगा और कोई रेफरेंस बुक स्कूल में लगाई है या नहीं. मेरे ख्याल से या तो लखमीर सिंह लगेगी या फिर मॉडर्न एबीसी, जहां तक मुझे लग रहा है. ओके. बाकी ठीक है, एनसीईआरटी तो बहुत बेसिक है, तो एनसीईआरटी तो हमें करनी ही है एट एनी कॉस्ट, है ना? आपने मुझसे पूछा नहीं कि प्रैक्टिकल सिचुएशंस में जीरो क्यों होता है अनबैलेंस्ड फोर्स? क्यों होता है अनबैलेंस्ड फोर्स? नहीं, मतलब जीरो अचीव करना क्यों होता है, जीरो अचीव करना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि और उसमें फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं ना, जैसे मैं बैठी हुई हूँ, है ना? तो मेरे पे ग्रेविटी तो एक्ट कर रही है, लेकिन मेरे पे मेरी बॉडी भी तो कोई फोर्स अप्लाई कर रही है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. यस सर.
अब जैसे हम ऊपर वाले बॉक्स का एग्जांपल ले ले, तो उसमें अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो फ्रिक्शन भी तो एक्ट कर रहा है ना ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। चलो ये भी एक, ये पूरा पॉइंट नोट कर लो। दिस इज बिकॉज ये जो आपने लिखी है ना लाइन, इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस इट इज डिफिकल्ट टू अचीव अ जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स, दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर फोर्सेस। हम कहाँ से कहाँ तक? ये मैं बोल रही हूँ आपको, दिस इज बिकॉज ये जो लाइन आपने अभी लिखी होगी, इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस इट इज डिफिकल्ट टू अचीव अ जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स, इसके आगे ऐड इन कर लो, दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द, दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर फोर्सेस एक्टिंग इन नेचर। This is because of the presence of other forces present in nature. present in nature. पढ़ लिया? चलो ये वाला पैराग्राफ पढ़ लो फटाफट। This is because to present. This is because of the presence of the friction force act opposite to the direction of motion. मतलब कि ऊपर वाले केस में क्या था कि जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमारे मार्बल पे एक्ट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द ऑपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसलिए उसका जीरो अनबैलेंस फोर्स होना मुश्किल है, ठीक है। चलो आगे रीड करो। Thus in practical the marble stops after traveling some distance. इसीलिए मार्बल थोड़े टाइम बाद रुक जाता है, ठीक है। The effect of the friction force may be minimized by using a smooth marble and a smooth plane and providing a lubricant on the top of the planes. मैंने आपको बोला था ना ये तभी पॉसिबल है अगर आपका जो सरफेस है वो तो स्मूथ हो, yes ma'am, है ना, ये पॉसिबल तभी है ना अगर आपका जो सरफेस है वो स्मूथ है, yes ma'am, ठीक है। अब आज के लिए हम इतना ही करेंगे, जितना मैंने कॉन्सेप्ट कराया आप उसको एक बार रिवाइज करोगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए हैं वो आप लिखोगे, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस की डेफिनेशन प्रॉपर लिखोगे, और क्या दिया था मैंने, एक क्वेश्चन और दिया था ना, unbalanced force are zero in this case. Why unbalanced force? एक मैंने क्वेश्चन आपको और दिया था, why unbalanced force are zero in this case? वही दिया था 3 क्वेश्चन। ओके 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 ओके, ठीक है। इसी वाले केस में ना, इंक्लाइन प्लेन वाले केस में, हाँ वो वाला दिया था, why unbalanced force is zero. ओके ठीक है, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके बाय बाय वरुण, टेक केयर। बाय मैम।